that a plant has cell wall and cell membrane? तो cell wall thin होता है. It is a logic. अगर cell wall thin होगा तो water का movement fast होगा ना. If it is this thick, तो इसको time लगेगा ना. अगर मुझे ये wall तोड़ना है, if this wall is made of one cell thickness, it will take lesser time for me to do. अगर ये wall इतना बड़ा है तो मुझे ज़्यादा time लगेगा. So now we are talking about what? Root hair having thin cell wall. The cell wall is thin and permeable, allowing movement of water molecules and dissolved substances freely. Cell membrane is very thin and semi-permeable. As a result, the dissolved molecules pass through, but large molecules don't. Cell wall freely permeable. Cell membrane semi-permeable. ठीक है? Freely permeable means it allows anything. It allows water also, minerals also. But semi-permeable का मतलब होगा selective. It allows only selective particles. Selective particle में water will always come and very small molecules होंगे तो large molecules है. और जब मैं molecules बोल रही हूँ, you have to understand I'm talking about mineral salts. और कौन सा molecule होगा? ठीक है? So more thinner the cell wall is, more faster and easier the diffusion of water will happen. तो root hair याद रखना, उसके जो cell wall होते हैं वो thin होते हैं. हो गया? This completes our 3 conditions or 3 criteria of the root hair for absorption of water. Easy? 3 याद रहेगा. Give reason में आ सकता है ये शेयर. Okay? Alright. Next up we go on to absorption and conduction of water and minerals. Now they are saying that water and minerals are continuously absorbed in the plant and there will be an upward transportation, but this cannot happen with miracles. So there are some processes that we are going to study. The first process is imbibition. Next we are going to study diffusion. Then we have osmosis, active transport, and these 2 are conditions. ये processes नहीं है, ये condition है. और ये चारों process तुमको मालूम होने चाहिए. And trust me, they are very easy. The first one is very easy. Let's see. There is a code G I have given over here, so you are able to understand it. Okay? So from this to here. अब देखो. अरे हाँ, मैं क्या देख रहा है? हाँ, देख. मच्छर घुस जाएगा. Okay, listen. Imbibition, very simple, and the definition should be learned by you. I cannot help you in this. ये learn करना पड़ेगा. इसमें 1-2 ही word तुमको याद रखना है. Imbibition is basically a process in which living or dead, listen to me, it's living or dead plant cell that absorbs water through surface attraction. Surface attraction का मतलब when 2 of the things are in contact with each other, so water will be attracted, water molecules will be attracted. I'll give you a very simple example for this. लकड़ा रहता ना अपना वुड, तो वुड पे अगर तुमने बॉटल रख दिया ना फ्रीजर से निकाल के, अगर बार-बार तुम ऐसा करोगे ना तो तुम क्या देखोगे, वो स्वेल अप हो जाता है पूरा, क्योंकि पानी ऐसा अंदर चला जाता है थोड़ा सा. स्पेशली पुराना वाला. नॉट दिस इज सनमाई का ऊपर लगा हुआ है ना ये, तो इस पे इतना नहीं होगा. बट वो पुराना सा लकड़ा होगा या पुराना फर्नीचर होगा या टेबल होगा ना, दिस विल हैपन. दिस इज बाउंड टू हैपन. नेक्स्ट आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एप्लीकेशन एग्जांपल. द डोर्स एंड द विंडोज दैट वी हैव, उसका एक वुडन फ्रेम होता है. स्पेशली थोड़ा पुराना सा अगर फर्नीचर होगा तो वुडन फ्रेम होता है. तो फुल तो रेनी सीजन में इट्स वेरी हार्ड टू ओपन और क्लोज दैट डोर. यू हैव टू पुश एंड पुल वेरी हार्ड. व्हाई? बिकॉज़ इट्स मेड अप ऑफ वुड. रेनी सीजन है तो डैम्पनेस बहुत हो जाता है. ठीक है, मतलब वाटर वेपर सैचुरेट कर देता है एयर को. दैट वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल सीप इनसाइड द वुडन फ्रेम एंड इट विल स्वेल इट अप. और जैसे वो स्वेल हो जाता है तो वो उस स्ट्रक्चर में आता नहीं है, इसलिए आपको क्लोज इट विद अ फोर्स स्लिट ऑफ फोर्स. यस मैम. हाउ डू डेड सेल्स absorb water? So dead cells will just accommodate the water in one of the क्या बोल सकते हैं layer beneath the outermost layer. It will just accommodate. They are not letting it mix with all the contents that are there. It's dead, so it will just accommodate. That's it. इसीलिए word है surface attraction. Are you able to see that? Surface attraction means when they are into contact, it will just attract the water molecule and it will stay there. Simple. One more example they have given is, you must have seen this. The seed pod ruptures due to imbibition pressure in the germination. घर पे वो sprouts खाते ना हम. Sprouts कैसा बनाते हैं? सोक करते हैं ना. So मूंग और मटकी और whatever that is, a little of pea seeds वो बटाना था.
तुम उसको पानी में भिगो के रखो ओवरनाइट, ओके, एंड देन यू टाइट, you kind of tie it and keep it. ऐसे भी उसको रखोगे, you will see the sprouts coming out. How the sprouts coming out? Because when you are soaking it in water, तो पानी absorb कर लिया seed ने और उस पानी से pressure बढ़ गया, and that pressure made the seed coat of that seed rupture. एक बार वो rupture हो गया तो उसमें से एक sprout बाहर आता है, देखा? हाँ. और ये तुमने पढ़ा है seed में, 9th standard में जब seed chapter था तो उसमें था ना seed coat ruptures. रप्चर इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसमें से इतना फोर्स हो रहा है पानी की वजह से कि the seed coat will tear out and it will allow that little radicle to move out, it will sprout to move out. So this is all due to imbibition. Yes, ये सिंगीज पोटैटो पोटैटो में होता है जब वो वाइट बीज वाली जो पोटैटो का तो उसको पानी रख के थोड़ा वाइट निकलता है, हाँ आउट है उसका, करेक्ट. और तुमने अगर पोटैटो को रख भी दिया ना, ऐसा पोटैटो लेके आए ना हम लोग मार्केट से, तो अगर बहुत टाइम हो गया है और थोड़ा डैम्प प्लेस भी है तो इट स्टार्ट्स गेटिंग दैट लिटिल स्प्राउट्स. ठीक है, अगर एक पोटैटो में तुमने ऐसे 5 स्प्राउट्स लेके तुमने उसको कट कर दिया थोड़ा सा, समझ आ रहा है कैसे कट करना है? ऐसा पोटैटो है ना, अगर यहाँ पे स्प्राउट है तो कट द स्लाइस विद दैट स्प्राउट, और तुम उसको अगर सॉइल में रखोगे तो प्लांट विल germinate, है ना? सो बेसिकली इट्स स्प्राउटिंग, द हैपनिंग इज द सेम थिंग राइट नाउ, कि वो इम्बिबिशन से वाटर इज गोइंग इनसाइड, दैट्स इट. इजी, ठीक है, बस दिस वाज इम्बिबिशन. और प्लांट में इम्बिबिशन होता है, हां, हर एक सीड में होता है इम्बिबिशन. यस, ऑफ कोर्स. ठीक है, सो बट हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, लिविंग और डेड. इम्बिबिशन इन जनरल इज अ प्रोसेस व्हिच कैन अकर इन लिविंग और डेड प्लांट सेल. प्लांट सेल इसीलिए बोला क्योंकि इट हैज टू हैव cell wall, cell membrane, everything, and surface attraction is one of the phenomena. Next we go to the very important, very interesting thing, diffusion. Diffusion के example भर के, और ये हम करके भी देखेंगे अभी, ठीक है? Diffusion, if I see, sorry, if I say, what is wrong with me? Diffusion, it is the free movement of molecule from the region of high concentration to region of low concentration when the two are in direct contact. अभी चिल्ला के मैं बोल रही हूँ स्टैंडर्ड में, जब तुम आपने वहाँ पे हाँ वेरी गुड, वेरी गुड. मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैंने यहाँ पे परफ्यूम का डिओ लगाया, so if I'm standing there and if I'm spraying it, तो ये वाला जो रीजन है ये वो मॉलिक्यूल से पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. बट जहाँ पे रिया मैम है वो कॉर्नर में तो नहीं, मैं वहाँ नहीं हूँ ना, तो वहाँ पे तो बिल्कुल मॉलिक्यूल्स नहीं है. बट स्लोली एंड स्टडीली शी विल अंडरस्टैंड दैट समबडी हैज स्प्रेड इट, बट क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े थोड़े डिस्पर्स होते हैं. ठीक है, तुम्हारे क्लास में जब कोई डब्बा खुलता है ना, जैसे मैगी बनाते हैं, हाँ एनीथिंग, मैगी ही नहीं, गैस रखते तो गैस की स्मेल के लिए. तुम्हारे घर पे whoever is cooking, if they start cooking, धीरे धीरे जब वो खाना बन जाता है और तो when the lid is open, I'll give you that example, whatever has been cooked, जैसे ही वो lid खुलता है तो वहाँ जो खड़ा उसको तो तुरंत आएगा उसका अरोमा, but the one who is sitting in the living area या balcony या पता नहीं कहाँ का, तो धीरे धीरे वहाँ तक जाएगा ना. बाजू वाला भी कुछ बनाता है तो आता ना, ये सब लिखना पड़ता और उनको मालूम होना चाहिए डिफ्यूजन क्या है. दूसरा इंसेंस स्टिक इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल. इंसेंस स्टिक, वी हैव अ टेंपल या कुछ भी थोड़ा सा ऐसा होगा सीक्रेट स्पिरिचुअल प्लेस, वहाँ से तुम देखोगे तो पूरे सब एरिया में दैट अरोमा, दैट फ्रेग्रेंस विल, ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेग्रेंस एंड अरोमा? फ्रेग्रेंस इज लाइक अ स्वीट स्मेल और अरोमा इज फूड का स्मेल. Aroma you use for food, and fragrance you use for perfumes, for soaps. So सही है. ठीक है, मैं तो उधर जाके, और मैंने सुना है लोगों को, स्पेशली गुजराती लोगों को, they will go and they will ask for soap, और soap में क्या मांगना चाहिए? Either ask for a different variant or a different flavor. They ask for different flavor. तो ऐसा मत करो. You should know this, okay? When you write different bars. हाँ. अरे फ्लेवर में आस्किंग, अरे क्या है सोप में, क्या खाते हो क्या उसको? ओके, यहाँ पे जो तुमको एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, तो मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें मीडियम क्या था? गैस था, बिकॉज इट वाज एयर एंड वी वर इन डायरेक्ट कांटेक्ट. यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, मैंने बोला यहाँ से मॉलिक्यूल्स आर ट्रैवलिंग देयर इज नो इंटरप्शन, सो वी आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वाटर आल्सो. यू मस्ट हैव डन दिस एट योर होम. ये एग्जैक्ट नहीं किया होगा पर मैं तुमको इससे रिलेटेड बता दूँ. You take a glass of water and you add 1 tablespoon of that squash that is available ना, शरबत वो भी मिलता है, ग्लूकॉन टी, हाँ ग्लूकॉन टी, कुछ भी. तो जैसे हाँ ग्लूकॉन, वेरी गुड एग्जांपल, ग्लूकॉन
या रसना है ना पाउडर मिलता है, तो जैसे तुमने पाउडर डाला what will happen, it will settle and it will sink at the bottom and gradually उसको undisturbed अगर रखा, तुमने कभी undisturbed नहीं रखा होगा, उसको stir किया होगा, और अगर तुमने ऐसे ही रख दिया for a lot period of time, ठीक है, आधा घंटा कुछ पौना घंटा रख दिया, you will see that the particles which have settled and sinked at the bottom they will start dispersing towards the upper surface. क्यों? क्योंकि नीचे वो गए तो वो एरिया concentrated हो गया ना, ऊपर वाला नहीं था, तो you will see that they start moving upwards. पेंट के साथ जो हेवी होता है वो नीचे रहता है ना, हाँ वो तो हेवी ऐसे नीचे चला गया, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया, सो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना है उसको, सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. यस, सो इट एक्वायर्स द होल थिंग, वो कॉन्सेंट्रेशन सब जगह पे सेम हो जाना चाहिए. यहाँ पे जो तुमको दिखाया ना दिस एक्सपेरिमेंट, दिस यू विल डू इन योर प्रैक्टिकल ऑल्सो. तुम्हारे प्रैक्टिकल का ये एक्सपेरिमेंट है, और इसमें क्या यूज करते हैं, दिस इज वाटर, दोनों एक ही है, सेम ही. बट इफ एट ऑल यू टेक अ बीकर में 3/4 या हाफ तक पानी भरो एंड यू ऐड लिटिल क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. मैं पर्पसली टेकिंग पोटेशियम परमैंगनेट ताकि वो कलर दिखे. मैं तो शुगर के भी साथ करवा दूँ, तुमको कहाँ से पता चलेगा फिर पेंट है ना, तो दैट इज बिकॉज इट इज वेरी मच ब्राइट इन कलर, इट इज पर्पलिश काइंड ऑफ कलर, सो यू कैन सी दैट व्हेन दे पुट दिस इट इज काइंड ऑफ सेटलिंग हियर समथिंग, और धीरे धीरे वो एकदम होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. विल डू दिस है ना. नेक्स्ट आज यू हैव गॉट ये रखा है वाटर इज इन द ट्रक. Now you know why. क्या बॉटल है? Don't touch it. पोटाशियम परमानेंट. तो देखने नहीं नहीं क्या दे? पी तो नहीं रहा हूँ. नहीं चलेगा इससे. पाउडर है, क्रिस्टल्स. अभी देखो क्या कहते हैं मेरा ये हो नहीं चलेगा. हाँ नहीं दिख नहीं रहा है मुझे. ओके सबको दिख रहा है. अच्छा देखो, नाउ वी यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट. जैसे इसको तुमको दिख रहा है क्या डिफरेंस? हाँ, अभी जैसे ही डालेंगे ना इट विल सेटल अप एंड देन वी कीप इट अनडिस्टर्ब्ड. ओके, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द कलर सेट्स. दिख रहा है? लिड लगा था उस पे, लिड है. दिख रहा है? गिर जाएगा. ऊपर ऊपर अभी ये क्या कहते हैं? दिखा कि नहीं दिखा? सारा ही उसमें टाइम पास कर दिया. ओके, so can you see the different color? magenta color है ना? This is the color of potassium permanganate. अब ये ना इसको you can see that there are two separate layers. ऊपर वाले में concentration बहुत कम है, नीचे ज्यादा है ना? इधर देखो ना. ठीक है? वाइट में दिखेगा. White background में दिखेगा. वो उधर. यहाँ नीचे का बोर्ड के नीचे है. इधर हाँ यहाँ देखो. हाँ ठीक है, तो तुमको दिखेगा ऊपर क्या है, इट इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, नीचे ज्यादा है. अब इसको थोड़ा टाइम ऐसे रख देना अनडिस्टर्ब, तो धीरे 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 ऊपर जाएगा. हैव अ क्लोजर लुक व्यू वो कैसे ऊपर जा रहा है. बस आयशा. ठीक है, ऊपर जाना ना पार्टिकल्स धीरे धीरे धीरे. और अभी तुम कलर देख सकते हो ना डिफरेंस. नाउ यू कैन सी द कलर डिफरेंस. नीचे बहुत डार्क है, ऊपर लाइट है. वी कीप दिस एज इट इज एंड आफ्टर सम टाइम हैव अ लुक, एक यूनिफॉर्म कलर हो जाएगा. समझ आ रहा है? दिस इज हाउ वी शो डिफ्यूजन. और दूसरा कि मैं यहाँ डीओ अगर लगाऊंगी तो ऑफ कोर्स यू विल गेट इट ओवर देयर. ओके, नेक्स्ट अप. अरे पेन चाहिए मुझे की कोई. ओके चलो. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्यूजन. मैंने डिफ्यूजन तुमको इसीलिए सिखाया क्योंकि वाटर और मिनरल्स ये दोनों डिफ्यूजन से जाएंगे अंदर. ऑल्सो गैसेस. आई गिव वन मोर एग्जांपल. वाटर तो जा ही रहा है प्लांट में, डिफ्यूजन. और दूसरा है मिनरल सॉल्ट्स जा रहे हैं
तो वो क्या सॉलिड, एक मैंने बताया लिक्विड, एक गैस सॉलिड, और गैसेस में वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. इट डिफ्यूजेस इनसाइड द लीफ. लीफ में अंदर जाता है थ्रू स्टोमेटा. डू यू नो व्हाट इज स्टोमेटा? Yes. Minute openings on the Bottom. surface. So when that carbon dioxide from the atmosphere goes inside the leaf, or when the oxygen is exiting the leaf, this happens through diffusion. As simple. Carbon dioxide बाहर ज्यादा है ना, प्लांट के अंदर कम है. So it goes from high concentration to the low. तो ऑक्सीजन भी आना चाहिए. ऑक्सीजन ज्यादा होता है प्लांट में बाहर से, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है. प्लांट छोटू सा है ना, तो उसमें ज्यादा दिखेगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो बाहर चला. ओके, ऑलराइट. डिफ्यूजन अगर समझ में आ गया तो ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगा. नहीं, वो ऑनलाइन लेक्चर भी लेगा, वो ऑनलाइन में होगा. ओके, ये स्लाइड सेम था, इसीलिए हम स्किपिंग. नेक्स्ट अब ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. तो more or less the definition will remain same. There are only two things that you have to take care. Osmosis जब कोई बोलता है तो you have to remember this. Osmosis is a process that is only applicable for water. So movement of water from the region of high concentration to the region of low concentration through a semi-permeable membrane. तो diffusion और osmosis के definition में सिर्फ ये फर्क है, water और semi-permeable membrane. Diffusion में कोई membrane नहीं था बीच में. था उसमें कोई membrane? नहीं ना. तो जब osmosis अगर हमको demonstrate करना तो we have to have a semi-permeable membrane. What is the other name for semi-permeable membrane, my dearies? हमारा आवाज यही लग गया. No baby. Cell wall. No. Selectively permeable membrane. क्या ही करते हो? क्या बोल रहे हो? हाँ? सेम ही तो हुआ. मैं सिनोनिम पूछा, मैंने एग्जाम्पल पूछा. एग्जाम्पल होगा सेल मेम्ब्रेन, सिनोनिम हुआ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या आंसर देके भाग जाते समझ में नहीं आता. ओके, फॉर दिस टू अंडरस्टैंड लुक एट दिस डायग्राम. The water is denoted by blue kind of bubble and the solutes are denoted by this green bubble. अब ये देखो, this is A and this is B. I'm writing it so that it will not confuse yourself. This is A, this is B. Are you able to see the selectively permeable membrane? या मैं semi permeable? क्या? लिखा है इसीलिए लो लिखा है. नहीं है तो लो हो गया ना, negligible. ठीक है? और यहाँ तो एक दो कर सकते हैं अगर तुमको चाहिए. ठीक है? अभी सुनो. This is A, this is B. You can see a selectively permeable membrane. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है? अब यहाँ पे क्या ज्यादा है? वाटर ज्यादा है और सॉल्ट कम है. जानबूझ के इन्होंने ऐसे लिखा. देखो ब्लू मतलब वाटर, सो हाई वाटर कंसंट्रेशन, लो शुगर कंसंट्रेशन. लो का मतलब नहीं भी होगा तो भी चलेगा और या तो एक दो होगा तो भी चलेगा. Over here, if at all you look in the section B, you have high sugar concentration and low water concentration. We are just concerned about water. I am not concerned about sugar right now. ये तो मैंने concentration बनाने के लिए sugar डाला, पर मैं concerned हूँ किसके लिए? water के लिए. तो water concentrated कहाँ ज़्यादा है, A या B में? देख के बताओ. पक्का A? Water is more concentrated over here. Don't confuse yourself with the quantity. I'm not talking about quantity. I'm talking about concentration. तो प्योर वाटर कहाँ है? प्योर सॉल्वेंट A में. You understand this? Pure solvent is water. प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट का concentration is in A और B में कम है ना. So this is again a rule कि जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ से travel करेगा towards the low concentration. So water molecule will start moving from A to B. Can you see this arrow? Yes. ठीक है? Now tell me, if the water is moving from this region to this region, will you be able to see the decrease in the level of water here? Yes. That is by default. पर मेरा quantity से कुछ लेना देना नहीं था. That is happening just because movement is constant. Do you understand? So now I am repeating. Look at this figure. I am repeating the definition. The movement of water molecule from the region of high concentration to the region of low concentration through a semi-permeable membrane is called as osmosis. Question बाद में वो water equal हो जाएगा दोनों साइड पर. Water equal नहीं होगा. Concentration of water equal होगा. हाँ, ये मूवमेंट जो रूट है के बीच में है, लाइक एक. हाँ, ये जो है ना, ये जो semi-permeable membrane यहाँ दिखा है, सोचो कि ये सेल मेम्ब्रेन, रूट है का सेल मेम्ब्रेन. This is a
schematic diagram for you. एक